Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking the 15th lecture of Operation Research, and we are continuing the assignment problems. Right? In the yesterday's lecture, we tried to understand the different assignments problem, which is based on the Hungarian methods. Right? And I'm asking the 3 to 4 questions in the previous lecture, but it's very hard luck to nobody is giving that answer, right? About the questions. So it's don't mind, and only few of the students are doing the previous chapters assignments, and they are not taking seriously the assignment which is given by the faculties, and they are not doing as based on the time limit. So this is very uh, heartbreaking from your sides. We are still putting more and more efforts for your betterments, but the response from your side is very low, right? So if possible, try to follow the instructions, whatever the instructions we are trying to give, right? Which is basically for your betterment. We are not taking any personalized benefits from that instructions, right? So if possible, try to follow that. So in today's lecture, which is based on one another new example, which is the assignment problem, which is based on the with finding the minimum assignment cost. So here you can see that a square matrix of assignment problem which is given, that is the 5 workers which is designated in the Roman, which is 1 to 5, and there are the 5 machines which is M1 to M5. So to solve that problem, first we have to start with the row minimization. uh, the first step of solution of this problem, which is the row minimizations. So you have to start with each and every 1 to 5 row. That is a row minimization process. What you have to do in the row minimization, you have to identify, right, the lowest member in the row number 1, right? Then you have to subtract that value from the another 4, right? The same procedure you have to do for the row number 1 to row number 5. As you get the answer of the row minimization matrix, right? Now you have to start the another new step, which is the step number 2 from for solving the problem, which is regarding you have to focus on the column in which there is a no zero, you have to identify the column in which there is a no zero. So in above problem, you can see that here the column number 4 and column number 5, there is a no zero, right? There is a no zero. So now you have to follow the further procedure with the column minimization process, which is the column minimization process. So what in the column minimization process, the procedure which is same as the row minimizations, right? Or the row conversions. So what happen in the column conversions, you have to identify the lowest member of the column 4 and lowest member of the or the lowest number of the column 5, right? So what happen in that, you have to, after identifying the lowest number, you have to subtract that number from the another 4 member, right? Same procedure you have to do for the column number 4 and column number 5. So after that, there is a completions of the row conversion process. So still now you have to complete the complete the 2 steps of the column minimization and row minimization. So in the answer of the column minimization matrix, you have to start the allocations. Of the 0 in the column conversions matrix. So here you can see that there is a 0 in each and every column,
right? You have to identify. Suppose you have to start the assignment in a very random basis. You can start where only zero is available in each and every row, right? अभी भी मैं आपको थोड़ा और इजी करने की कोशिश करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से. अब ये चीज़ जैसे आपको कॉलम कन्वर्जेंस मैट्रिक्स का आंसर मिल गया, उसके बाद जो आपके पास सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज रहती है कि हम लोग ज़ीरो का एलोकेशन कहाँ से करें, राइट? अब ज़ीरो का एलोकेशन करने के लिए आपको ऐसी कॉलम जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जिसके अंदर एक ही ज़ीरो है, राइट? वहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है. तो आप देखोगे कि कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, उस सारे 4 कॉलम के अंदर ज़ीरो जो है वो एक ही ज़ीरो है. तो आप देखोगे कि कॉलम नंबर 1, 4 एंड 5 उसमें एक ही रो के अंदर ज़ीरो जो है वो आपको मिल रहा है. यानी यहाँ से आप असाइनमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके कर नहीं सकते. सपोज़ आपने कॉलम नंबर 1 के अंदर असाइनिंग ज़ीरो को असाइन कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर आप यानी वो जो है वो रो नंबर 3 में है, राइट? कॉलम नंबर 1 में जो ज़ीरो है वो रो नंबर 3 में आइडेंटिफाई हो रहा है. जैसे ही आपने उसको असाइन कर दिया तो आप जो है वो कॉलम नंबर 4 और 5 के अंदर जो सेम रो के अंदर जो ज़ीरो है उसको असाइन नहीं कर सकते, और उसके अलावा उस कॉलम के अंदर ज़ीरो है नहीं. यानी आप यहाँ से आगे उस सॉल्यूशन को लेके नहीं जा सकते. उस कंडीशंस में आपको लाइन क्रॉसिंग जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई, you have to cross the line with using the minimum line, and you have to covered the almost all zeros, right? अब आप देखोगे तो मेरे पास जो है वो कॉलम नंबर 2 जिसके अंदर 4 ज़ीरो है, तो मैंने अभी जो है वो कॉलम नंबर 2 को मैंने क्रॉस कर दिया. उसके ऊपर लाइन मैंने घुमा दी, एक हल्की सी लाइन जो जिसके ऊपर आपको जैसे लाइन क्रॉस करने से आपको वो नंबर तो दिख सके, पर एटलीस्ट वो क्रॉस हो जाए. तो कॉलम नंबर 2 जो है मैंने आइडेंटिफाई कर दी, उसको मैंने लाइन क्रॉस कर दिया. आप देख लीजिए कि उसके बाद जो है वो आपका बचेगा रो नंबर 3 जिसके अंदर 4 ज़ीरो कवर हो रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो 4 ज़ीरो जो है वो कवर हो रहा है, राइट? अब वो आपने क्रॉस कर दिया तो उसके बाद जो है वो आप देखिए कि जैसे ही वो कवर हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पास एक ही ज़ीरो वाला बचता है, राइट? या तो फिर आप उसको कॉलम 3 से, आप देखिए कॉलम 3 में जो है वो एक ज़ीरो बच जाता है जो रो 2 के अंदर है. या फिर आप कॉलम जो है वो 3 को रिमूव कर सकते हैं, लाइन क्रॉस कर सकते हैं, या फिर आप उस ज़ीरो को कवर करने के लिए जो है वो रो 2 है जो आपका M2, उसको आप क्रॉस करके उस ज़ीरो को मिटा सकते हैं. तो आप आपके पास वहाँ पे 2 ऑप्शंस रहते हैं, राइट? अब ये चीज़ आपने देखी तो मैंने क्या किया कि मैंने रो को फोकस करिए. आप अब ये टेबल देखिए तो आपने पता चलेगा कि मैंने कॉलम 2 को क्रॉस कर दिया है, रो 3 को क्रॉस कर दिया है और रो 2 को क्रॉस कर दिया. और उस 3 लाइन को यूज़ करके मैंने सारे अभी जो मुझे जो ज़ीरो मिल रहे थे उसको मैंने आइडेंटिफाई करके क्रॉस कर दिया है. अब आपको फोकस करना है कि जिस नंबर के ऊपर जो है वो पूरे टेबल में से जिसके ऊपर से लाइन क्रॉस नहीं हुई है, उसमें से सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा नंबर है. तो जो बच चुके हैं वो नंबर आप देख लीजिए, 6, 4, 11, 3, 8, 3, 5, 3, 5, 8, 11, 1, यानी 1 जो है वो सबसे छोटा नंबर है. अब 1 को आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, और 1 आपको कहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है. तो आप देखिए कि कॉलम नंबर 2 मेरा, राइट, कॉलम नंबर 2 जो वर्टिकल लाइन है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. तो आप देख लीजिए M2 जहाँ पे M2 रो का दूसरा जो है वो सेल है जहाँ पे 1 लिखा है, वहाँ पे एक नंबर जो है वो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है इंटरसेक्ट हो रही है. और उसके बाद M3 रो के अंदर जहाँ पे 0 है
वहाँ पे भी फिर से आपको यही चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी, एक ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब आप देखोगे तो मेरे पास ये जो टेबल है वो बन के आ गया है, जहाँ पे आप देखोगे कि एक था वहाँ पे ज़ीरो है, लास्ट कॉर्नर वाला, लास्ट रो, लास्ट पॉइंट जो है उसका वहाँ पे ज़ीरो हो गया और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐड कर दिया है। अब मुझे जो है वो फिर से सेम प्रोसीजर है वो अप्लाई करनी है। अब आपको ज़ीरो असाइन करने की कोशिश करनी है, तो आप वहाँ से स्टार्ट करिए कि जिस कॉलम के अंदर जो है वो एक ही ज़ीरो है। तो मेरे पास ऐसे आप देख लीजिए कि 3 कॉलम ऐसी है, मेरी कॉलम नंबर 1 जिसके अंदर एक ज़ीरो है, कॉलम नंबर 3 जिसके अंदर एक ज़ीरो है, और कॉलम नंबर 4 जिसके अंदर एक ज़ीरो है। अगर सपोज़ मैंने कॉलम 1 का जो ज़ीरो जो M3 रो के अंदर है उसको असाइन किया, तो फिर मेरा जो कॉलम नंबर 4 है जिसके अंदर ज़ीरो है वो भी सेम रो के अंदर है, तो फिर वो असाइन नहीं हो पाएगा। यानी इस टेबल के अंदर भी स्टिल देयर इज़ नो सॉल्यूशंस, राइट। हम ज़ीरो को असाइन नहीं कर सकते, तो सेम प्रोसेस जो है वो हम फिर से करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको ज़ीरो को लाइन क्रॉस करना है, जिससे मिनिमम लाइन को यूज़ करके सारे ज़ीरो को क्रॉस कर सकते हैं। यानी आप देख लीजिए कि मैं चूज़ करूँगा कि कॉलम नंबर 2 के अंदर 3 ज़ीरो है, तो मैंने वो लाइन जो है वो मैंने क्रॉस कर दी, राइट। अब उसके बाद जो है मैं सिलेक्ट करूँगा, क्या चीज़ सिलेक्ट करूँगा, M3 रो को सिलेक्ट करूँगा, राइट। फिर M2 रो को सिलेक्ट करूँगा, यानी M2 वाला जो एक ज़ीरो है वो भी आइडेंटिफाई हो जाए, और M5 वाला जो लास्ट में एक ज़ीरो लास्ट में बना था वो भी एक बार रिमूव हो जाए। तो फिर मैं सेम प्रोसीजर इस 4 लाइन को यूज़ करके मैंने उड़ाने की कोशिश की है। आप देख लीजिए, एक वर्टिकल मैंने क्रॉस किया और 3 जो है वो हॉरिजॉन्टली क्रॉस किया, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट अभी 3 मिलेंगे, राइट। इंटरसेक्टिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो है वो 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अब जैसे ही आप बचे हुए नंबर पे फोकस करिए कि बचे हुए नंबर कौन से मिल रहे हैं आपको, यानी बचे हुए नंबर आपको सिर्फ मिल रहे हैं 8 नंबर, 5, 3, 10, 2, फिर उसके बाद 7, 2, 4, 2, इसमें सबसे कम कौन सा है, 2। अब जहाँ पे 2 है वहाँ पे 0 हो जाएंगे, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर मुझे 2 जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। यानी इंटरसेक्टिंग हो रहा है वर्टिकल कॉलम जो है वो कॉलम नंबर 2 के साथ इंटरसेक्टिंग 3 रो में अंदर 3 की रो के अंदर हो रहा है, M2 के अंदर, M3 के अंदर और M5 के अंदर इंटरसेक्टिंग हो रहा है। यानी M2 के अंदर जहाँ पे 2 है, राइट, सेकंड सेल में वहाँ पे 4 हो जाएंगे। M3 के अंदर जहाँ पे 1 है वहाँ पे जो है वो 3 हो जाएंगे, और M5 के अंदर जहाँ पे 0 है वहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो अब ये जो है मेरे पास सेम टेबल जो है वो इस तरीके से बन चुका है। अब फिर से मुझे असाइन करने की कोशिश करनी है। अब असाइन करने के लिए मुझे वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा जिस रो के अंदर सिंगल ज़ीरो है। तो आप देखिए जो जिस रो के अंदर सिंगल ज़ीरो है, ऐसे कॉलम जो है वो कितने हैं, तो क्या आप देख लीजिए कॉलम नंबर 1 जिसके अंदर एक ही ज़ीरो है, फिर कॉलम नंबर 4 इसके अंदर भी एक ही ज़ीरो है, और जो दोनों ज़ीरो है दोनों के वो सेम रो के अंदर है, यानी कि अभी भी प्रॉब्लम वही चीज़ बना हुआ है, प्रॉब्लम है यहाँ। यानी आप कॉलम 1 का जो ज़ीरो जो है जो M3 के रो के अंदर है वो आप असाइन कर लोगे, तो फिर आपका कॉलम नंबर 4 के अंदर जो M3 का जो ज़ीरो है उसको असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रूल्स हैं इसके अंदर आप हर एक कॉलम के अंदर एक और हर एक रो के अंदर एक ही ज़ीरो जो है वो असाइन कर सकते हो, डुप्लीकेशंस नहीं होना चाहिए, राइट। तो फिर से मुझे लाइन क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। अब लाइन क्रॉसिंग करने के लिए आप देख लीजिए, अब मेरे पास जो है वो मैक्सिमम ज़ीरो है वो 5th कॉलम के अंदर है, तो एक मैं वो सेलेक्ट करूँगा, राइट। फिर उसके अलावा जो है वो एक चीज़ क्या हो सकती है, इसके अलावा एक चीज़ हो सकती है, जो मेरा कॉलम 2 है वो मैं करूँगा तो 2 ज़ीरो कवर हो जाएंगे। फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरा रो जो है वो M2 और M यानी आप देख लीजिए
ये मिनिमम लाइन हमें यूज़ करनी है ना, इसलिए ये एक बार सोचना पड़ेगा। एक तो मेरा कॉलम 5 वो तो आपको दिख ही रहा है क्योंकि मैक्सिमम 4 ज़ीरो है, उसको मैंने लाइन क्रॉस कर दिया। उसके बाद मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ कि जिससे मैक्सिमम ज़ीरो जो है वो कवर हो जाए, तो वहाँ पे आप जो चीज़ जो कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो है वो मैक्सिमम आपके, यानी आप देख लीजिए कि ऐसे दो कंडीशंस बन रही है, राइट। आप M3 रो को उड़ा दीजिए जिसके अंदर 3 ज़ीरो है, राइट। तो वो एक मैंने यूज़ कर दिया। फिर मेरा M5 जो M4 जो रो है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर 2 ज़ीरो है, राइट। अब जो चीज़ बचेगी उसके अंदर जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा हाँ। अब इस चीज़ के अंदर जो है वो आपका सेम चीज़ M2 सिलेक्ट करना पड़ेगा और M1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से जो है वो आपके सारे लाइन जो है वो यूज़ हो जाएंगे। आप देख लीजिए मैंने ज़ीरो जो असाइन कर दिया, एक M4 जो है जो 5th कॉलम था उसको यूटिलाइज़ कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यूटिलाइज़ किया M3। तो जैसे ही मैंने M3 जो है वो यूटिलाइज़ किया तो आप देखोगे कि मेरे 3 ज़ीरो वहाँ पे कवर हो चुके हैं, राइट। और मैंने जो यूटिलाइज़ कर लिया जो है वो मैक्सिमम था 3rd कॉलम के अंदर, वो मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। तो उसको यूज़ करके फिर कॉलम 1 और कॉलम 3 यानी सारे जो है वो ज़ीरो जो है वो अभी आइडेंटिफाई असाइन ज़ीरो जो है वो लाइन के अंदर क्रॉस हो चुके हैं। अब असाइनमेंट जो है मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं असाइनमेंट स्टार्ट करूँगा तो आप देखिए मेरे पास जो नंबर बचते रहे, जो बचे हुए मेरे 2 कॉलम हैं, बचे हुए जो है मेरे 2 कॉलम हैं वो कौन से कॉलम हैं, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4। और रो की बात करूँ तो M2 और M45 जो अभी तक जो है मेरे बचे हुए हैं उसमें नंबर जो है मुझे अनआइडेंटिफाइड नंबर मिल रहे हैं जिसके ऊपर लाइन क्रॉसिंग नहीं हुआ है। तो उसमें से सबसे छोटा नंबर है वो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी इंटरसेक्टिंग कहाँ पे हो रहा है आप देखिए, एक M3 और कॉलम 1 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक M3 और कॉलम 3 के अंदर इंटरसेक्टिंग हो रहा है, एक M3 और 5th कॉलम के साथ इंटरसेक्टिंग हो रहा है। तो उस 3 जगह पे 0, 1 और 0 की जगह पे सबसे छोटा जो वेरिएबल है वो ऐड होगा और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर ऐड हो जाएगा और बाकी के सारे जो बचे हुए जिसके ऊपर लाइन क्रॉसिंग नहीं हुआ है वहाँ पे आपका जो है वो सब्सट्रैक्टिंग हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो है आप देखोगे कि जहाँ पे बचे हुए जो नंबर थे, जो बचे हुए नंबर थे यानी आपका जो बचे हुए थे 0, 8, 4, 4, फिर आपका हो गया 0, 2, 2 और 10, यानी 2 जो सबसे कम था, 2 जो है वो माइनस होने वाला था। तो जैसे ही वो 2 सब जगह से माइनस हो गए तो फिर कहाँ पे चीज़ हो जाएगी, यानी आपके जो था वो उसमें से 0 को 0 ही रखा है। फिर 8 थे वहाँ पे 6 हो गए, फिर 6 थे वहाँ पे 4 हो गए, फिर 2 हो गए। इस तरीके से हमने कम कर दिए, राइट, सब्सट्रैक्ट कर दिया। और जो भी 0 था वहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्टिंग हुआ था वहाँ पे हमने यूटिलाइज जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर मैंने क्या कर दिया था, वहाँ पे एडिशन किया था, राइट, 2 नंबर का एडिशन किया था। तो जैसे ही वो एडिशन हुआ उसके बाद आपने 0 को असाइन करने की कोशिश की है। आप जैसे ही वो 0 असाइन करेंगे तो आपको फोकस करना है किस रो और किस कॉलम के अंदर एक ही 0 है। तो अभी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि सारे जगह के अंदर जो है वो एक रो और एक कॉलम के अंदर 0 जो है वो असाइन हो रहा है, राइट।
और उस तरीके से अब आपको जो है वो ऑप्टिमम असाइनमेंट वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब जैसे ही आपको ज़ीरो असाइन हो गए तो आपको अब फोकस क्या करना है, अब जहाँ पे भी आपने ज़ीरो असाइन किया है वहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या थे जो क्वेश्चंस के अंदर, तो वो क्वेश्चंस के अंदर से आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको प्लस करना है, राइट। आप जैसे ही प्लस कर दोगे तो वो आपका जो है वो टोटल असाइनमेंट कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे टोटल असाइनमेंट कॉस्ट जो है वो आपका बन रहा है 40, राइट। आ रहा है ना समझ में, जो यहाँ पे आपने जो भी ज़ीरो असाइन किए है वो ज़ीरो जो है वो आपके क्वेश्चन वाले जो टेबल थे वहाँ पे वो ज़ीरो की जगह कौन सा नंबर था वो सब लेके उसको प्लस कर देना है, विच इज़ बिकम एज द टोटल असाइनमेंट कॉस्ट, राइट। सो ये आपका आंसर हो जाएगा और उस तरीके से आपको फाइनल जो है वो कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। So now we focused on the another example of the assignment problem which is the non-square matrix. अब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप देखोगे तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज़ होती है, तो कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप देखिए तो आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे अनबैलेंस प्रॉब्लम था ना, अनबैलेंस प्रॉब्लम, तो अनबैलेंस प्रॉब्लम के अंदर क्या चीज़ होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में अपने पास अनबैलेंस था, यानी जितनी रो होती है उतने कॉलम नहीं होते, राइट। अब उसी तरीके से यहाँ पे जो है वो असाइनमेंट के अंदर स्पेशल केसेस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये जो है वो स्पेशल केसेस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो स्पेशल केसेस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो क्या चीज़ होती है, तो आप देखिए जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए असाइनमेंट प्रॉब्लम का वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो आपको जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, वो टेबल में आप देख लीजिए आपके पास कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, राइट। अब उसके ऑपोजिट आपके पास रो कितनी है, तो आप देख लीजिए रो जो है वो आपके पास 4 रो है, 1 2 3 4, यानी ये प्रॉब्लम जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई करके, जैसे ये स्क्वायर नॉन मैट्रिक्स है, नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो है वो प्रॉब्लम पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं है, तो फिर जैसे ही वहाँ पे जो हम लोग जो सॉल्यूशन करते थे उसी तरह से यहाँ पे भी सेम सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास क्या कम कर रहा है, क्या कमी हो रही है, यानी एक कॉलम जो है वो वहाँ पे हमारे पास जो है वो कम है कॉलम, राइट। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको एक कॉलम जो है वो कम है, रो 4 है कॉलम 3 है, तो कॉलम एक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो डमी कॉलम जो है वो ऐड करेंगे। जैसे ही डमी कॉलम ऐड करेंगे तो जैसे डमी कॉलम ऐड किया डमी करके, वो सारे जो वेरिएबल्स हो गए वो सारे ज़ीरो हो गए, पर अपना अब जो कंडीशन बन जाएगी ना वो अब मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे जो एक नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स था उसको मैंने मैट्रिक्स में जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास जो थे वो कॉलम 3 थे, यहाँ पे मैंने चौथा कॉलम जो है वो 0 वेरिएबल के साथ ऐड कर दिया। अब मेरे पास कॉलम नंबर ऑफ़ रो इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल है। अब जैसे ही वो नंबर ऑफ़ कॉलम और इंटू नंबर ऑफ़ रो जो है वो इक्वल जैसे हो जाता है, इसी तरीके से अब मेरा प्रॉब्लम बैलेंस है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे एक जो इसके सॉल्यूशन के अंदर जो है वो ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट क्या आएगा कि अब आपको यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप था, वो फर्स्ट स्टेप कौन सा स्टेप था, हम लोग रो वाइज कन्वर्जन्स करते थे, राइट। अब रो वाइज कन्वर्जन्स यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? आप देख लीजिए कि सारे रो के अंदर एक ज़ीरो है, सारे रो के अंदर एक ज़ीरो है, यानी ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे छोटा वेरिएबल तो सारे रो के अंदर ज़ीरो ही होगा ना, राइट। तो ज़ीरो में से ज़ीरो तो माइनस नहीं कर सकते, यानी आपका फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब सीधा इसका सॉल्यूशन होगा वो सेकंड स्टेप से स्टार्ट हो जाएगा। यानी सेकंड स्टेप जो था वो आपका कौन सा स्टेप था, सेकंड स्टेप, यानी यहाँ से आपका सॉल्यूशन जो होगा वो कॉलम कन्वर्जन से स्टार्ट हो जाएगा। 4 कॉलम आपके पास 3 कॉलम ऐसी है,
चौथी तो कॉलम के अंदर सबसे सब जीरो ही है, राइट। 3 कॉलम मेरे पास ऐसे है जिसके अंदर कोई जीरो नहीं है, तो आपको यहाँ पे कॉलम वाइज कन्वर्जन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कॉलम का सबसे छोटा वेरिएबल लीजिए और उसको बाकी के 3 मेंबर में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है वो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है वो कॉलम कन्वर्जन्स अभी हो चुका है। जैसे ही कॉलम कन्वर्जन्स हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर से वो जीरो असाइन करने की प्रोसेस करनी है। तो आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस कॉलम के अंदर एक ही जीरो है। तो आप देख लीजिए कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, उस दोनों में एक एक जीरो है। कॉलम नंबर 3 में भी एक जीरो है, पर वो डिफरेंट रो के अंदर है, राइट। पर जो कॉलम 1 और 2 यानी कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर जो जीरो है वो सेम रो नंबर 2 के अंदर है, तो फिर वहाँ पे आइडेंटिफाई हो नहीं सकता। अब आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, अब आपको लाइन क्रॉसिंग प्रोसीजर के अंदर जाना पड़ेगा, यानी इटरेशन 1 जो है इस प्रॉब्लम का इटरेशन 1 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो ज़ीरो है उसको क्रॉस करना है, राइट। तो मेरा जो कॉलम नंबर 4 है वो मैं क्रॉस कर दूंगा। रो नंबर 2 है, जो 2 नंबर वाली रो है, जो जिसके अंदर 2 ज़ीरो है, उसको मैंने क्रॉस कर दिया। और रो 1 उसको मैंने क्रॉस कर दिया, राइट। उसको मैंने जैसे ही क्रॉस कर दिया तो अब मेरे पास बचेंगे 6 वेरिएबल। आप देख लीजिए 6 वेरिएबल जो है मेरे बचेंगे किस तरीके से, 10 20 10 20 30 20। इसमें से सबसे छोटा जो वेरिएबल है वो 10 है, इसमें से सबसे छोटा जो वेरिएबल है वो 10 है। तो 10 जो है वो बाकी सारे वेरिएबल्स में से माइनस हो जाएंगे जो जिसके ऊपर लाइन क्रॉसिंग नहीं हुआ है ये 6 वेरिएबल्स में। और जहाँ पे इंटरसेक्टिंग बनता था, इंटरसेक्टिंग कहाँ पे बना था, तो इंटरसेक्टिंग जो है वो 2 जगह पे बना था। यानी आप देख लीजिए कि मेरा जो जो रो सॉरी जो मेरा रो 2 है, रो 1 है और कॉलम 4 है, राइट, कॉलम 4। तो आप देख लीजिए कि वहाँ पे लास्ट के पोर्शन पे जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहे हैं, राइट, दोनों 0 0 के ऊपर। रो 1 रो 2 और कॉलम 4 वहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग बन रहे हैं वहाँ पे 10 ऐड करने पड़ेंगे। जहाँ पे जो फर्स्ट 2 ज़ीरो है ना वहाँ पे प्लस हो जाएंगे और बाकी की जगह से माइनस हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि इसके पास अभी ये सॉल्यूशंस बच रहा है। तो ये आपने ज़ीरो असाइन करने की कोशिश की पर हो नहीं सकता था। जैसे ही हो नहीं पाया तो उसके बाद जो है वो हमने क्या करने की कोशिश की कि मुझे लाइन क्रॉसिंग करने की कोशिश की। तो मैंने लाइन क्रॉसिंग करके सबसे जो छोटा वेरिएबल था वो मेरे पास 10 बचा, 10 जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद जो है उसका फिर से असाइन करने की वेरिएबल असाइन करने की कोशिश की। तो मेरे पास अभी जो जितने भी सारे ज़ीरो है वो सारे हर एक कॉलम और हर एक रो के अंदर जो है वो एक ज़ीरो जो है वो असाइन हो पा रहा है। अब ये जो सॉल्यूशंस है वो ऑप्टिमम मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट जो है वो मुझे मिल जाएगी। अब जहाँ पे भी आपके जो ज़ीरो है वो असाइन हुए हैं, जहाँ पे भी आपके जो ज़ीरो है वो असाइन हुए हैं उसको आपको ओरिजिनल जो आपके पास जो क्वेश्चन वाला जो टेबल था उसमें से उस ज़ीरो के प्लेस को आपको चेक करना है और वो प्लेस को आपको ऐड करते जाना है। यानी सब ज़ीरो को मिला के आपको ऐड करते जाना है। आप देख लीजिए कि 1 के अंदर जो है मेरा C है, 2 के अंदर मेरा B है, 3 के अंदर जो है मेरा A है और 4 के अंदर जो है मेरा D है, राइट। वो सबको ओरिजिनल टेबल में वहाँ पे कौन से नंबर्स थे उस मिला के वो नंबर का आप टोटल करोगे तो 250 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम। यानी ये जो है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें इस तरीके के जो ये प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करने की कोशिश करी तो ये चीज़ ये एक नया वेरिएबल था, राइट, जिसके अंदर जैसे वहाँ पे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था, ये भी एक तरीके का अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है जिसके अंदर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया जाता है, राइट। अब जो भी आपका कम पड़ेगा ना, सपोज आपके पास रो कम है तो रो ऐड करनी पड़ेगी, कॉलम कम है तो कॉलम जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। इस हिसाब से जो है वो आपको ऐड करना है। आपके पास अब यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल है, आप देखिए जे तो यहाँ पे आपके पास जो कॉलम है ना, कॉलम, राइट, 1 2 3 4 5 कॉलम है। अब उसके साथ सेम जो आपके पास रो भी है वो भी 5 है। यानी ये जो है वो पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपको रो कन्वर्जन करना पड़ेगा।
आप रो कन्वर्जन करिए, सबसे छोटा जो रो का वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफाई करके उसको बाकी के सारे वेरिएबल्स में से माइनस करके सारा एक रो कन्वर्जन टेबल बन जाएगा। जैसे ही रो कन्वर्जन टेबल बन जाएगा उसके बाद आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है उस टेबल में से कि उस टेबल में ऐसी कोई कॉलम है जिसके अंदर एक भी ज़ीरो नहीं है। तो आप देखोगे तो कॉलम नंबर जो है मेरा 2, वो सिर्फ ऐसा एक मुझे सॉरी इसमें से तो एक भी कॉलम ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर ज़ीरो ना हो। सब कॉलम के अंदर जो है वो एक ज़ीरो है। आप देख लीजिए कॉलम नंबर 1 के अंदर 2 ज़ीरो, 2 के अंदर 1 ज़ीरो, 3 के अंदर 1 ज़ीरो, 4 के अंदर 1 ज़ीरो, 5 के अंदर 2 ज़ीरो, यानी सब ज़ीरो है। तो आप उसमें से ही आपको असाइन करने की कोशिश करनी पड़ेगी, राइट। तो आप उसको असाइन करिए की कोशिश करिए। तो सबसे पहले फोकस कहाँ पे करिएगा, यानी आपको फोकस वहाँ पे करना है जहाँ पे जिस कॉलम के अंदर एक ही ज़ीरो है। तो ऐसे 2 कॉलम है आपके पास दिख रहा है जिसके अंदर एक ही ज़ीरो है, राइट। सॉरी, ऐसे 3 कॉलम दिख रहा है मुझे जिसके अंदर एक ही ज़ीरो है। कॉलम नंबर 2, 3 और 4 जिसके अंदर एक ही ज़ीरो है। और वहाँ पे भी आप देख लीजिए कि कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 जिसके अंदर जो ज़ीरो है वो सेम रो के अंदर है। यानी ये जो अभी आपके पास टेबल है उसमें से जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो लाइन क्रॉस करना पड़ेगा। तो लाइन क्रॉस करने के लिए आपके पास क्या प्रोसीजर है, आपको मिनिमम लाइन को यूज़ करके जो है वो मैक्सिमम ज़ीरो को कवर करना है। यानी आप देख लीजिए कि मैं कैसे लाइन जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी जो है मैं इस तरीके से लाइन को जो क्रॉस करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास आप देख लीजिए कि एक मेरे पास जो है वो रो नंबर 1 को मैंने क्रॉस किया, फिर मैं जो है वो रो नंबर 3 को क्रॉस करूँगा, फिर रो नंबर 4 को क्रॉस करूँगा और कॉलम नंबर 1 को क्रॉस करूँगा। इस तरीके से जो है वो मैं सारे ज़ीरो किसको मैंने क्रॉस किया, आप सुनिएगा। मेरा रो नंबर 1, रो नंबर 3, रो नंबर 4, राइट, उसको मैंने क्रॉस किया है। यानी मैंने 3 रो को क्रॉस किया है। और मैं कॉलम जो है वो एक ही लूँगा। कौन सा लूँगा, मैं ले लूँगा वहाँ पे जो है कॉलम नंबर 1, जिसकी वजह से जो है वो मेरा लास्ट वाला जो ज़ीरो है वो कवर हो जाए। ये तो मेरा ज़ीरो कवर हो जाएगा। तो अब बचे हुए वेरिएबल्स में से जो है वो सबसे छोटा वेरिएबल जो है वो आपका आइडेंटिफाई करना पड़े। यानी आपके बचे हुए वेरिएबल कौन से हैं, मैंने रो 1 यूज़ कर ली थी, राइट, रो 3 यूज़ कर ली, रो 4 यूज़ कर ली थी, यानी रो 2 और रो 5 जो है वो आपके पास बची हुई है। तो उसमें से जो लाइन वेरिएबल है, अनक्रॉस लाइन वेरिएबल है, वो कौन से है, 18, 14, 10, 10, 14, 2। तो 2 है वो सबसे छोटा वेरिएबल है। 2 को इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर ऐड करना है। इंटरसेक्टिंग कहाँ पे होगा, तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट कॉलम जो है वो मेरा उसके साथ जो 3 इंटरसेक्टिंग हो रहा है, यानी आपके पास 4, आपके पास 12 और आपके पास 4, वहाँ पे 2 ऐड हो जाएगी। यार 4 की जगह 6 होगा, 12 की जगह 14 होगा और 4 की जगह जो है वो क्या चीज़ हो जाएगी, आपका 6 हो जाएगा। तो अब उसके बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सेम ऐसे मैट्रिक्स मिल रहा है आपको, देख लीजिए। आप जैसे ही वो मैट्रिक्स मिला तो उसके अंदर लाइन क्रॉसिंग तो मैंने कर दी थी। उसके बाद आपने ज़ीरो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो आप को जो ज़ीरो मिल रहा है वो सारे अब हर एक कॉलम के अंदर हर एक ज़ीरो जो है वो आपको सेम ज़ीरो जो है वो एक कॉलम के अंदर एक ही ज़ीरो है वो असाइन हो रहा है। तो फिर जहाँ पे भी असाइन हुए हैं उस प्लेस को आपको क्वेश्चन के टेबल में से आपको आइडेंटिफाई करना है। और क्वेश्चन के टेबल में से जैसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे तो उस जो ओरिजिनल नंबर थे उसको सबके साथ ऐड करके एक फाइनल जो है वो ऑप्टिमम असाइनमेंट कॉस्ट जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वो आपका ऑप्टिमम असाइनमेंट कॉस्ट जो है वो 86 रुपीज़ जो है वो बन जाएगा। सो अब ये जो था वो आपका आंसर हो गया, राइट। अब एक और एग्जांपल है जो फिर से अनबैलेंस तरीके का एक एग्जांपल है।
तो आप देख लीजिए आपके सामने टेबल में से जो है वो आपके पास कॉलम कितने हैं, तो आपके पास 5 कॉलम आपको दिख रहा है, राइट। अब उस 5 कॉलम के अंदर आप देख लीजिए कि उसके सामने जो है वो 5 जॉब है, ABCDE, और 4 रो है, सॉरी 1 2 3 4, यानी प्रॉब्लम जो है वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है, जिसके अंदर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। यानी उस कंडीशन के अंदर उसको स्क्वायर करने के लिए आपको एक रो की, कॉलम तो है मेरे पास 5, तो एक रो जो है वो जीरो वाली डमी रो जो है वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो जैसे ही वो मैं एक डमी जो है वो रो जो है वो ऐड कर दूंगा, तो अब उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम, यानी यहाँ पे आप देख लीजिए कि ज़ीरो जो सारे हैं ना वो 2 डेसिमल्स के अंदर जो है वो नंबर्स दिए गए हैं पॉइंट के बाद, तो आपको ज़ीरो के बाद भी 2 डेसिमल जो है वो ऐड कर देना है, राइट। अब जैसे ये बैलेंस जो है वो अभी स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, तो आप देख लीजिए कि इसके अंदर जो है वो अभी सिर्फ क्या चीज़ हो पाएगी कि आपका रो वाइज कन्वर्जन्स हो पाएगा, कॉलम वाइज कन्वर्जन्स नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए हर एक कॉलम के अंदर जो है वो स्टेप नंबर, यानी आप सोचिए कि स्टेप नंबर 2 जो है ना वो प्रोसेस का, प्रोसीजर का, वो यहाँ पे नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारे कॉलम के अंदर जीरो है और जीरो में से जीरो माइनस हो नहीं सकते। तो फिर आप फोकस कहाँ पे कर सकते हैं, सिर्फ रो वाइज कन्वर्जन हो सकता है। तो आप पहले रो वाइज जो है वो कन्वर्जन कर दीजिए, हर एक 4 जो है ऊपर वाले रो उसमें से माइनस सबसे छोटा वेरिएबल फाइंड आउट करके उसको उस रो के बाकी बचे हुए जो 4 वेरिएबल है उसमें से माइनस कर दीजिए। इसके बाद आपका जो है वो रो वाइज कन्वर्जन मैट्रिक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। अब जैसे वो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या ट्राई करनी है, कॉलम वाइज कन्वर्जन हो नहीं सकता, तो फिर जो अभी आपके पास टेबल है उसमें से आपको जीरो को असाइन करने की कोशिश करनी है। वो जीरो की असाइन करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे जो है वो क्या चीज़ मिल जाएगी कि हर कॉलम और हर रो के अंदर आपको एक जो है वो जीरो हम असाइन कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको नेक्स्ट इटरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी इटरेशंस के अंदर आपको पूरा आंसर मिल रहा है, तो यहीं पे आपने असाइन कर दिया। और जहाँ पे अभी जो ज़ीरो असाइन हुआ है उस ज़ीरो को जो है वो आपको क्या करना है, ओरिजिनल टेबल में से वहाँ पे कौन सा नंबर था वो आइडेंटिफाई करके उसको आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मशीन कितने हैं और उसके सामने जॉब कहाँ है और आपने कहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, तो आप मशीन 1 2 3 4 आप लिख लीजिए और डमी था वहाँ पे किस जगह पे आपने आइडेंटिफाई किया, जॉब को असाइन किया, यानी आपने 1 के अंदर डी में असाइन किया, 2 के अंदर बी में असाइन किया, 3 के अंदर जो है वो आपने सी में असाइन किया, 4 के अंदर जो है वो आपने ई में असाइन किया, राइट, और डमी के अंदर आपने ए में असाइन किया, और वहाँ पे ओरिजिनल फिगर कौन सा था वो सबको मिला दीजिए, तो उसके बाद आपको ऑप्टिमल असाइनमेंट कोर्स जो है वो मिल जाएगी। तो आज के अंदर जो हमने एक जो नया प्रॉब्लम सीखा वो ऐसा था कि एक के अंदर कॉलम डमी ऐड किया, एक के अंदर रो डमी ऐड किया। अब 2 प्रॉब्लम अनबैलेंस तरीके के नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के। अब आपके पास और एक एग्जांपल आपके सामने है जिसके अंदर आप देख लीजिए कि आपके पास जॉब कितने हैं 6, इसके सामने मशीन कितने हैं 6। तो आप देखोगे कि इसका क्या चीज़ हो सकता है, प्रॉब्लम तो है वो बैलेंस कंडीशन के अंदर है, तो फिर आप पहले रो वाइज कन्वर्जन करिए फिर कॉलम वाइज तो मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने रो वाइज कन्वर्जन किया तो उसके अंदर ही मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है। आप देखिए जिसके अंदर मैंने जैसे ही रो वाइज कन्वर्जन किया तो इसके अंदर मुझे वहीं से जो है वो सॉल्यूशन हर कॉलम और हर रो के अंदर एक जो है वो ज़ीरो असाइन करके मिल चुका है। तो अब वो ज़ीरो वाली प्लेस को आपको ओरिजिनल टेबल में से उस नंबर को आइडेंटिफाई करके उसको बता देना है। तो दैट इज़ बिकम एज ए ऑप्टिमल असाइनमेंट कोस्ट। ये जो है वो 20 आपका जो है वो ऑप्टिमल असाइनमेंट कोस्ट जो है वो बन जाएगा। यानी आज के अंदर जो है वो हमने अनबैलेंस, आज हमने नई चीज़ क्या सीखी है, अनबैलेंस बोल सकते हैं इसको, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, उस तरीके के असाइनमेंट प्रॉब्लम को हमने समझने की कोशिश की है। अगर इस प्रॉब्लम के अंदर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, राइट। ये जो एग्जांपल आज हमने कोशिश की है वो आप घर पे एक बार प्रैक्टिस करिएगा, फिर जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इसका असाइनमेंट दूंगा, वो भी आपको प्रिपेयर करना है वो बुक में, राइट, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। यानी ये जो चैप्टर मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ना, ये आपको पास होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट।
तो आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा। जैसे ही आप लेक्चर को ख़त्म कर लोगे, एक बार देख लोगे पूरा, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस के अंदर प्लीज़ आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए, विच इज़ काउंटेड एज ए योर ऑनलाइन अटेंडेंस। अभी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप फॉलो करिए, हम लोग आपको बहुत शांति से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए। जो सिस्टम है वो सिस्टम आपको फॉलो करना ही है, राइट। और